Very good morning. Today we're going to start a new topic, that is sex linked inheritance. So, the topic sex linked inheritance means the inheritance which is associated with the sex chromosomes X or Y. Okay, so it is inheritance of phenotype or trait which is determined by gene located on sex chromosomes, okay, or allosomes. सो दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, यानी इसमें क्या कहा गया है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हाट वी रिसीव, व्हाट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर प्रीवियस जनरेशंस. व्हाट इज एक्स लिंक्ड? दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स क्रोमोसोम्स. सो whatever we inherit, we are inheriting from sex chromosomes. तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. दैट मीन्स inheritance which is specifically associated and linked with sex chromosomes or allosomes. So it can either be X linked inheritance or Y linked inheritance, because as you know that there are two types of sex chromosomes, X chromosomes and Y chromosome. Okay, they are also known as allosomes, and other than sex chromosomes are known as autosomes. In case of human beings, they are 44 in numbers, and two are allosomes X and Y, which are sex chromosomes. Okay, so they can either be X linked or Y linked. यानी यहाँ सिंपल बात करेंगे ये कि एक क्रोमोसोम है, एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है. इन दोनों के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे अगली जनरेशन में जाके. अगर एक करेक्ट जीन होगा, सही जीन होगा, तो उसका एक्सप्रेशन भी अच्छा जाएगा आगे. अगर कोई डिफेक्टिव जीन है, कोई आर्टेड जीन है, कोई उसमें कोई डिफेक्ट है, कुछ खराबी है, तो आगे चल के जो प्रोडक्ट है, जो एंजाइम बनेगा, जो आगे जो प्रोटीन बनेगा, जो ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, वो भी डिफेक्टिव होगी. तो ये वो जीन्स है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक होके एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को आगे पास ऑन करते रहते हैं. ओके, सो दे कैन ईदर बी एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड. इसको नोट कीजिएगा, वाई लिंक्ड जीन्स. ओके, सो वाई लिंक्ड inheritance is known as Hollandric inheritance. Okay, Hollandric inheritance is known as Y linked inheritance. और यह हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे अब disorders which are related to sex linked inheritance. Okay, disorder, that means we are talking about some defective genes which transfer from one generation to the next generation with their defective effects. Like we would discuss firstly, that is hemophilia, and then color blindness, so on. जो भी syllabus में mentioned है हम उनको यहाँ पे पढ़ेंगे. तो first of all hemophilia. So hemophilia is sex linked inheritance. एक एक वर्ड जो इसमें दिया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा. So what is hemophilia? It is an inherited bleeding disorder. Inherited bleeding disorder in which blood does not clot properly. एक बार कोई इंजरी हो जाए, तो फिजिकल इंजरी हो गई किसी भी कारण, तो अगर ब्लड जो है उसमें से जब हम ब्लड लॉस होगा तो बॉडी हमारी उसमें क्लोटिंग नहीं कर पाती. तो जब क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड कंटिन्यूसली जो है वो बाहर फ्लो करता रहेगा, जिससे डेथ भी हो सकती है. तो क्या कारण है? एज यू नो, आपने प्लस वन में चीज पढ़ी थी अबाउट सम प्रोटीन फैक्टर्स और क्लोटिंग फैक्टर्स, एंड ऑल ऑफ like 13 factors were there. All these factors, they work together in order to perform a clotting process. Okay, and if there is a deficiency, or if there is the absence of any clotting factor among them, then our body does not perform the process of clotting properly, which results into this bleeding disorder that is known as hemophilia. So hemophilia is of two types, hemophilia A and hemophilia B. Hemophilia A is also known as classic hemophilia.
also known as classic hemophilia, or this classic actually this classic hemophilia, this is due to deficiency in factor 8. So there is a deficiency in factor 8. factor 8 यहाँ पे नहीं होता. What is factor 8? आपने पढ़ा +1 में, is anti-hemophilic factor. So anti-hemophilic factor is known as factor 8. And anti-hemophilic factor, if this factor is not there due to defective gene, if this factor is not there, then hemophilia A would take place in that offspring, and because of this bleeding disorder may take place. This hemophilia B is also known as Christmas disease. This is due to deficiency of factor 9. So factor 9 is also known as इसी के नाम से ये Christmas factor. Okay, so Christmas factor and anti-hemophilic factor, factor 8, factor 9. Okay, अब यहाँ से थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाइए. आपने जान लिया what is the definition of hemophilia, inherited bleeding disorder where blood does not flow properly. Types: hemophilia A, hemophilia B, also known as classic hemophilia due to deficiency of factor 8, which is anti-hemophilic factor, and hemophilia B, which is also known as Christmas disease due to deficiency of factor 9. That means Christmas factor. Now, here some questions must be arisen in your brain, that how does it inherit? That how does this inherit? So it is inherited as an X-linked recessive pattern. यहाँ पे याद रखना है इस चीज के बारे में. हमने पढ़ा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वहां पे X की बात भी आएगी, वहां Y की बात भी आएगी. बट हीमोफीलिया is transferred from one generation to another generation only along with X chromosome. ये सिर्फ X chromosome के साथ ही आगे से आगे ये ट्रांसफर होता है, Y chromosome के साथ नहीं. ठीक है. So it is associated with X-linked, X chromosome. और यहाँ पे ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, X-linked recessive pattern. Recessive. The gene which is present on X chromosome, which is responsible for this hemophilia, is recessive in nature, is not dominant. Okay. So होता क्या है, जैसे in females, actually this hemophilia जो है आपका, हीमोफीलिया जब हम बात करते हैं, so this hemophilia actually affects males more than females. यानी सबसे ज्यादा ये चीज कॉमनली कहाँ पाई जाती है, मेल्स में. फीमेल्स में ये ना के बराबर होता है. वजह, इन फीमेल्स इट इज एज अ कैरियर. फीमेल ऑलवेज एक्चुअली अ कैरियर ऑफ दिस हीमोफिलिक डिजीज डिसऑर्डर. कैसे? जैसे मैंने क्या बोला, दिस इज एक्स लिंक्ड. दिस हीमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी वो जो जीन है वो रिसेसिव है. इन केस फीमेल XX. जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो X है इस पे वो जीन प्रेजेंट है, ये वाला जो X है इस पे वो डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हीमोफीलिया के लिए. आपको हमने पढ़ा है कि XX में क्या होता है, बार बॉडीज बोलते हैं. बार बॉडीज क्यों बोलते हैं? कि जब इन केस ऑफ फीमेल देयर इज अ पेयर ऑफ XX, one X chromosome will be inactivated, known as bar bodies. आपने चीज पढ़ी है ये. इसमें से एक इनएक्टिवेटेड हो जाता है. अगर मान लीजिए ये इनएक्टिवेटेड, ये X क्रोमोसोम जिसके ऊपर ये हीमोफिलिक जीन था, ये इनएक्टिवेटेड हो गया है, सिर्फ यही एक्टिव है, तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा फीमेल को. उसमें वो रिसेसिव रहेगा, वो कैरियर हो सकती है लेकिन उसको अफेक्ट नहीं करेगा. ओके, सो हाउ डज इट इनहेरिट? Inherited is in an X-linked recessive pattern. X-linked means this gene is linked with X chromosome. Recessive means this gene is recessive.
So that's why mother is always carrier of this hemophilic gene. What causes disorder? This disorder, ये क्या किस वजह से ये चीज जो है वो disorder जो है cause होता है? An altered or defective gene, an altered or defective gene present on X chromosome is responsible for this. Okay, this defective gene which is present on X chromosome is responsible for this disorder. How this happens? This happens due to mutations. म्यूटेशन के कारण ये चीज होती है. म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जीनोम और जेनेटिक मटेरियल, its nature and expression. So due to mutation, this gene becomes defective, and this defective gene is transferred along with X chromosome from one generation to another generation. मदर को ये या फीमेल को ये इफेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्स की बात हो रही है, एक एक्स पे जीन प्रेजेंट था. अगर ये, जैसे आपको पता है कि इस पेयर ऑफ एक्स एक्स में एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है. अगर ये इनएक्टिव हो गया तो इस जीन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा फीमेल को, क्योंकि सिर्फ यही काम कर रहा है. इसमें कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं है. इस पे डिफेक्टिव है तो ये इनएक्टिव हो चुका है वैसे भी एक्स क्रोमोसोम. इसलिए मदर जो है वो कैरियर है, उसे वो चीजें इफेक्ट नहीं करेंगे. ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट. Both of these forms, hemophilia A and B, occur more in males than females. ज़्यादातर होती है commonly males में. What causes this? Or many of the genes which are responsible for hemophilia A and B. So F8 gene is responsible for hemophilia A. F9 gene is responsible for hemophilia B. F8 means factor 8 gene, factor 9 gene, anti-hemophilic Christmas factor. So if there is deficiency of clotting factors or proteins in the body, then the work of blood clotting process would not be taken place properly. अगर ये इनमें से कोई भी मिसिंग हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो चेन टूट जाएगी. जब चेन टूट जाएगी वो पूरा क्लॉटिंग प्रोसेस की, तो क्लॉटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. नाउ दिस इनहेरिटेंस पैटर्न, ये इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे काम करेगा? लुक, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, एक्स एंड वाई. यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने एक्स क्रोमोसोम जो है वो दो, एक मैंने येलो कलर का बनाया है, यहाँ मैंने बनाया स्काई ब्लू कलर का एक्स. देख रहे हैं? दिस येलो कलर्ड एक्स क्रोमोसोम इज नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम. दिस स्काई ब्लू कलर्ड एक्स क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम विद डिफेक्टिव जीन, हेमोफिलिक जीन. Now this XY is this is father, this is mother. XY yellow है, to be normal X chromosome है, तो father does not have hemophilia. Initially this father does not have hemophilia. एक लड़का है, बड़ा हुआ 30-35 साल का होगा जो शादी करेगा, तो father does not have, or this male does not have hemophilia, but this mother is the carrier of defective hemophilic gene. ये देखिए, ये जो एक्स क्रोमोसोम, ये तो देखिए ये इसमें इस मदर में ये एक्स क्रोमोसोम एक्चुअल में इनएक्टिव था, लेकिन जीन तो वो कैरी कर ही रही है उसमें साथ में. ओके, तो ये मदर कैरियर है इस डिफेक्टिव हीमोफिलिक जीन की. इसे इस मदर को हीमोफिलिया नहीं है, ये सिर्फ कैरियर है. वजह क्योंकि उसमें वो जीन जो है वो रिसेसिव रहता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. व्हेन दे विल गेट मैरिड, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटीज आगे ऑफस्प्रिंग्स के, इसको हम दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये आया, दिस नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल. ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज. दिस नॉर्मल डॉटर, येलो एक्स नॉर्मल डॉटर, येलो एक्स, दिस ऑरेंज वाई नॉर्मल सन. सिर्फ ये इसको याद रखना, ये जो मैंने बनाया स्काई ब्लू एक्स, ये डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम विद डिफेक्टिव जीन है. ये कैरियर डॉटर, ये डॉटर है, ये कैरी कर रही है, ये कैरियर है. नाउ हीमोफिलिक सन, एक्स एंड वाई एक्स को साथ में कौन आ गया? इसके साथ एक्स, ये आ गया डिफेक्टिव एक्स आ गया, तो ये हीमोफिलिक सन है. यानी इन 4 में से सिर्फ एक, यानी 25%, 1/4 हो गया ना, ये 25% पॉसिबिलिटी होगी कि बच्चों में एक लड़के को, लड़की हमेशा क्या होगी? कैरियर होगी. लड़का जो है उसे हीमोफिलिया होने के चांसेस 20, यानी ऑफस्प्रिंग्स में 25% चांसेस होंगे किसी एक को
हीमोफीलिया होने के, और वो ज़्यादातर लड़का होगा, सन ही होगा। ओके, तो ये आपने चीज़ अच्छे से करनी है। वी वुड डिस्कस अबाउट कलर ब्लाइंडनेस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।